Hello, good morning students. Welcome to e-learning. Today we are going to start with our 7th lecture in our chapter 6, that is unemployment, and that is the last topic, which is the measure to reduce unemployment. But before we are going to start, I want to tell you that we have reduced, or I have reduced the syllabus. That is, it was previous lecture I told that is it would be 1 to 6, but I have reduced to 1 to 5 because it's a more chapters which will be there. It will be difficult for you to capture. So in the beginning, so I'm going to tell you that it is from the first to 5 chapters till the 6th chapter is not there, but you have to watch regularly because it's a few topics which I'm going to cover with the 15 to 20 minutes video every day. So nearly ये 4 lectures में ख़त्म हो जाएगा आज से एक दिन के, with including today's lecture, totally 4 lectures will be there. So nearly by this week it will get completed. So make sure you watch all the lectures today, okay, as well every day, so that you can complete. As well as we're going to start this particular topic, that is measure to reduce unemployment. So let's start with the first one here. So we know as that the unemployment has become the major problem, and there are several causes for this reduce for the unemployment. So what you have to do, that is, we see that in India, basically in India, you find that it is not only the economical downfall which we find in unemployment, it is also the social and the moral as well as social psychological. Why it is? Because कि अगर एक पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाए, उसको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उसको सोशल इश्यूज, ही थिंक दैट आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, आई एम नॉट अ पर्सन विच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर जॉब एंड अदर्स आर गेटिंग जॉब. सेम वे मॉरली वो डिस्प्रेस हो जाए, मीन्स he think that भाई मैं कैसा आदमी हूँ XYZ. So different issues is been created because of this particular unemployment which we find. Again you find that the political point of view से अगर देखा जाए तो problem is very serious, where you find that it was from the very first 5-year plan, मतलब 1951 की बात करें, फर्स्ट 5-year plan जो बना था, वहाँ से उन लोग ने मेजर टॉपिक सुना था कि दिस विल बी अ मेजर प्रॉब्लम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अगेन यू फाइंड दैट स्पेशली फ्रॉम द 5th and 6th आफ्टर फर्स्ट 5-year plan, in the 5th and 6th 5-year plan it was been focused, that is a prime object, prime मतलब primary objective of the there it was to reduce the unemployment. इन लोग का मेन था कि भाई वो हम reduce करें unemployment. तो फर्स्ट में था कि भाई हमको कुछ भी करके reduce करना है unemployment. देन आफ्टर 5th and 6th में भी वही सेम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया कि हमको कुछ भी करके एम्प्लॉयमेंट कम करना है. सो दे हैव मेड सर्वल पॉलिसीज एंड प्लान्स, बट स्टिल इट वाज नॉट एबल टू वर्क. अगेन इन द 8th 5-year plan की बात करें, इट वाज थॉट दैट टू मेक द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज फंडामेंटल राइट्स, कि हमने ये सोचा कि भाई हम ये करें कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट रखते, मतलब जो 6 राइट्स थे हमारे उसके अंदर एक और ऐड कर दे 8th 5-year plan के अंदर. वो लोग बात कर रहे थे इट इज़ राइट टू एम्प्लॉयमेंट. So what is happening up? The changes could be made in the constitution but could not be materialized. ये materialize नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ कि भाई वो लोग ने सोचा कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट कर देंगे तो एक राइट बन जाएगा तो सबको जॉब मिलेगी, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो पाया. सो दैट वाज, इट कुड नॉट बी पॉसिबल इन द physical way. So it is clear that from all this point of view that unemployment from the beginning it was a major problem, it is a very serious problem in our country India. So there should be appropriate opportunities for this particular problem which we face. So that is a prime responsibility of our country to make sure that it should create more and more amount of employment opportunities in our country. Again, what are the things they have done, or what are the problems to solve this particular problem? What are the following steps they have taken? So there are several steps. First, it is population control. Second, increase in rate of economic development. Third, employment oriented planning. Fourth, you find employment oriented education. Fifth, development of cottage and small scale industries. Sixth, you find an extension of infrastructure facility, which we have seen in causes of unemployment. ये थोड़े बहुत कॉजेज़ जो हमने पढ़े उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो यू फाइंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विच वाज द 10th पॉइंट इन द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यू फाइंड दैट उसको अच्छे से इंक्रीज़ करें सो दैट विलेजेस कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर. सो फॉर द गुड वेज रेट्स, बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं था, अच्छे रोड्स नहीं थे, ये वगैरह प्रॉब्लम की वजह से ये लोग नहीं जा पा रहे थे. Then speed and expansion in the green revolution. We have seen only green revolution was been acquired in our country by Punjab and Haryana. Other states were not able to capture or it would apply this particular green revolution which has been there. So it should be speed up and expansion of green revolution with the whole country will help us to grow the agriculture sector more and more faster. So these are the 7 steps which are been there. We are going to learn in detail. So let's start with the first one.
First is population control. We know that we are ranking second in the world population, largest population, that is with the 138 crores of people at present. So what you find that because of this fast growing population, we know that from the 2011 census data, every year 1.70 lakh, or we can say 1 crore 70 lakh of people is being added to in our country. So you find that it is more than the population of our Australia. So every year one Australia is been coming up in our country, where you find that this becomes a major problem कि एक हर साल 1,70,00,000 को जॉब बेसिक नेसेसरी कैसे फुलफिल करें. सो यहाँ पे ये बोला गया है बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ऑन दी वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर डिमांडिंग इज इंक्रीजिंग. लेबरर्स डिमांडिंग मतलब यहाँ पे लेबर लोग की बहुत डिमांड है और यहाँ पे उन लोग की बेसिक नेसेसरी डिमांड बढ़ गई है बिकॉज जितने भी लोग आएंगे उन लोग को खाना पीना तो चाहिए. बेसिक नेसेसरी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज बीन नीडेड. अगेन ऑन दी अदर हैंड, ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, we find that our economic growth is growing very less compared to other countries, and there you find that because of this slow growth there is less amount of employment which is generated. So when there is less amount of employment, you find that only less few people can get engaged in jobs and other people become unemployed or jobless. So ultimately this becomes a major problem. That is, first is the population. यहाँ पे एक साइड पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी साइड पे अपॉर्चुनिटीज जॉब्स कम है और यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं. वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टार्टिंग, दैट यू फाइंड सीजनल, फ्रिक्शनल, वी कैन से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली विच इज़ बिन देयर, विच इज़ बिन ऑब्जर्व. सो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. देन आफ्टर, एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. यस, we find that unemployment is increasing every day by day. In India, the problem of unemployment is to be solved, then effective steps of the population control must be taken up. मतलब यहाँ पे effective steps लेने पड़ेंगे. effective steps कैसे लेने पड़ेंगे? We have to see then different steps are taken, but ये यहाँ पे mention नहीं किया गया है. See, it is there again in the next chapter, जो population बड़ा chapter है उसके अंदर इन लोग ने बोला गया है कि कौन से steps, there are steps to control population, but here it is not told. So frankly we can say here कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम population control कर सकते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है. देन विद दैट रेट तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और हाई रेट ऑफ लेबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाई रेट ऑफ लेबर सप्लाई विल ऑल्सो रिड्यूस. मतलब पॉपुलेशन कम तो लेबर कम, लेबर कम तो लेबर सप्लाई कम, लेबर सप्लाई कम तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मीट कर सकेंगे बिकॉज बहुत सारे लेबर तो निकल गए. देन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को काम करना है, दैट इज़ they are willing to job but they are not getting job, those are the job seekers, will also get reduced. And on the other hand, because of population control, resources become surplus. because यहाँ पे population कम हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी space बन जाएगी, like resources become surplus, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का consumption कम हो जाएगा. consumption कम हो जाएगा तो वो बढ़ means it will be surplus than the consumption. तो जितना भी कंजप्शन हो उससे कम होगा तो सरप्लस बढ़ेगा तो हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी विल बी इंक्रीज. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, नहीं तो रिड्यूस होता है, तो ये पॉसिबल है कि हम अच्छे से ग्रोथ कर पाए. सो दिस इज़ अ मेजर थिंग, दैट इज़ अ पॉपुलेशन विच इज़ अफेक्टिंग टू अस. Then after, with the population control, in a long term, the productive age, नहीं तो active workforce की बात करें, we have studied about active workforce, that is the age of 15 to 64 years. It is known as what, active workforce, जहाँ पे ये लोग काम कर सकते हैं अच्छे से अपने for their living. So can be placed appropriately. So we can place with the different age group, different places with getting proper appropriate jobs. So this can be also done if effective steps are taken. What are the effective steps? वो हमको अभी यहाँ पे ये वाले 6th chapter में नहीं पढ़ना है. Clear? So this is been done. Then after you find that the next topic, that is increasing in the rate of economic development. Economic development अगर increase कर दे, उसका growth rate increase कर दे तो क्या हो जाएगा. So you find that first is the construction solution to reduce unemployment. मेन क्या है, हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसा स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्ट करना है कि जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन ला सकें. सेकेंड, और उससे दो चीज़ हो सके, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो एंड दूसरी जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो. इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग यू फाइंड दैट फर्स्ट जो हमारा रेट, ग्रोथ रेट कितना था, इट वॉज
लो एज 3 to 3.5%, मतलब पर ईयर हम 3% से ग्रोथ कर रहे थे, जो बहुत कम परसेंटेज था. इट शुड बी इन डेवलप कंट्रीज, बट डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज़्यादा होना चाहिए. सो एवरी इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग, इनिशियल मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसकी बात करें तो हमारा ग्रोथ रेट 3 to 3.5 था. नाउ इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज और हायर रेट से, हियर इट इज़ बीन टॉक्ड अबाउट हाई रेट मतलब कितना होना चाहिए, near to we can say 8 to 10%. if it is at a higher rate, then the employment opportunities can also develop. क्योंकि जब डेवलपमेंट कब गिरेंगे, वी हैव सीन द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि सब कुछ ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सबकी जगह पे डेवलपमेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है. और उसके अंदर मेन इज़ एम्प्लॉयमेंट. So employment opportunities can be given up and also at a higher rate, and the problem of unemployment can be solved. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लाओ, कंपनी प्रोडक्शन करो, या एग्रीकल्चर सेक्टर लाओ जिसके अंदर लेबर. सो एनी वेयर एनी प्लेसेस देयर शुड बी लेबर एंगेज इन आवर कंट्री. व्हेन देयर इज अ एंगेजमेंट ऑफ लेबर्स, what will happen in the work, there you find that unemployment will get reduced, and you find that we can create higher number of employment. Again, फॉर दैट कोऑर्डिनेशन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको सर्विस सेक्टर इंक्रीज करना है, नहीं तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज करना है, नहीं तो इंडस्ट्री. इट शुड बी ऑफ ओवरऑल ऑल 3 सेक्टर्स टुगेदर. दे शुड इम्प्लीमेंट द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. मतलब सभी सेक्टर के अंदर ये सब चीज़ होना चाहिए. मतलब ये इंडस्ट्रियल की बात भी मत करो, अगर प्राइवेट ओनर्स हो उन लोग को भी ये लेना चाहिए, पब्लिक ओनर्स हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव ओनर्स हो. सो एज वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बेस, तो सभी को यही सोचना है कि हाउ वी कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री. अगर ये सब लोग एफर्ट्स करेंगे, जॉब्स देंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, there will be a situation where no one will be unemployed in our country. So in agriculture sector, irrigation facility, other required facility should be created and agriculture growth should be kept high. The first thing is irrigation facility. जो हमको प्रॉब्लम आता था तो उसको सुधारो, उसको अच्छा करो. उसके बाद जो दूसरी फैसिलिटी, दैट इज़ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए, तो उसको अच्छे से सुधारो. तो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्रीज. अगर वो इंक्रीज होगा तो हमको अच्छे नंबर ऑफ पीपल चाहिए जो हार्वेस्ट कर सके, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो क्या हो जाएगा कि लेबर कंटिन्यूसली एंगेज रहेंगे. देन you find that effect should be made so that advantage of green revolutions will be reaped by every state. मेन चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आता है, हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड्स आर बीन देयर. हाइब्रिड सीड्स मतलब कम पानी में भी वो उतना डबल ग्रो करेगा. सो नॉर्मली वी फाइंड दैट दिस आर द, वी कैन से, जो ऑर्गेनिक सीड्स, जो नेचुरल सीड्स आते हैं उससे अलग सीड्स, मतलब सेम टाइप के सीड्स है, लेकिन वो दे हैव मेड दैट पर्टिकुलर सीड्स वेयर यू फाइंड दैट कि उन लोग का प्रोडक्शन वो कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ बीन देयर, अगर वो 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे सपोज 1 टन मीन्स 1000 kg ऑफ सपोज राइस ग्रो हो रहा है. अगर उसकी जगह पे हम हाइब्रिड सीड्स डालें तो उसका डबल, वी कैन से 2 टन्स ऑफ राइस वी कैन ग्रो. सो लाइक दिस वी फाइंड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब अच्छे पेस्टिसाइड, अच्छे सीड्स, हाइब्रिड सीड्स यूज़ करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. सो अगेन वी फाइंड दैट दिस शुड बी नॉट ओनली इन पंजाब एंड हरियाणा लिमिटेड, मतलब पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ही नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर और अलग स्टेट्स में भी जाना चाहिए. सो दैट विल बी अचीविंग द हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, एंड दिस विल रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस, ये पूरे पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइज करने के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड करती है. एक तो इरिगेशन फैसिलिटी की बात करती है, एक सभी सेक्टर्स को ये पूरा लेना पड़ेगा कि हम जॉब एम्प्लॉयमेंट अच्छे से क्रिएट कर पाए. सो इट शुड बी द एफर्ट्स ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स विच आर बीन देयर. अगेन स्टेट शुड मेक सम डिफरेंट अचीवमेंट्स कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन सब स्टेट्स में पॉसिबल करे. अपने हर एक स्टेट में अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो होगा, एंड इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज in our country. Now, so this was all about your first and second point. Let's move to the third point. Now, third point says that is employment oriented planning. मतलब एम्प्लॉयमेंट की ऐसी प्लानिंग करो कि कैसे, कहाँ पे, किस जगह पे जॉब मिल सके. तो इट इज़ सीन इन द ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स, यू फाइंड
that special emphasis मतलब special importance was given on economic development. So in the second 5-year plan उन लोग ने क्या देखा कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएंगे. हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था. 70 to 75% ऑफ पीपल आर इन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो हमको जो रेस्ट ऑफ देम उसके लिए जो अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो कंपनीज़ के अंदर काम करो, तो उसको हमको डेवलप करना है. So in second 5-year plan, they specially gave an importance to the development of public sector as well as basic industries. And thirdly, capital intensive industry. We have learned what is capital intensive. मतलब capital intensive मतलब machine making, ज़्यादातर मशीन पे काम करे ऐसे ही वाले इंडस्ट्रीज़ बनाओ. So that should be developed in the second 5-year plan. That is, it is the era of 1956. Now for a strong foundation, industrialization, अगर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो ये फाउंडेशन होना चाहिए. So ये फाउंडेशन के लिए ये नेसेसरी था कि हम आयरन एंड स्टील कंपनी बनाएं, एल्यूमिनियम कंपनी बनाएं, जो उस टाइम पे 1950-51 में बनी थी. और वो किसने चालू किया था? पब्लिक सेक्टर ने चालू किया था. Now for the strong foundation of industrialization, it was necessary, but the present situation, employment oriented planning is very important. उस टाइम पे ये नेसेसरी था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी कोई भी चीज़ करना है तो वी हैव टू लुक फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. सो फॉर दैट स्टेट हैज़ टू एंकरेज कंज्यूमर गुड्स. हमको कैसे गुड्स बनाना है? कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मतलब दोज गुड्स विच मशीन्स ना हो, कैपिटल गुड्स ना हो. इट शुड बी कंज्यूमर, फास्ट मूविंग वी कैन से गुड्स, FMCG गुड्स. सो हमको जो कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक क्लोथ्स, लाइक फूड पैकेट्स, बिस्किट्स, एवरीथिंग विच इज़ बिन देयर, तो वैसे वाली चीज़ बनाए. लेबर इंटेंसिव, जिसके अंदर ज़्यादा लेबर लगे, वैसे वाली प्रोडक्शन करो. स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, बिजनेस एंड ट्रेड्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ के अंदर फोकस करो. तो व्हाट विल हैपन, ऑल दिस प्लेसेस, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस की बात करें, ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री बात करें, एवरीवेयर देयर इज़ एन एंगेजमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर विच इज़ बिन रिक्वायर्ड. सो अल्टीमेटली दिस प्लेसेस अगर डेवलप कर देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पीपल एम्प्लॉयड होंगे तो उन लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उन लोग का इनकम लेवल बढ़ जाएगा. So when there is a good amount of employment opportunities, or per capita income and national income also increases. Because of all this, industries require less capital. मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत. अगर इफ़ यू आर प्लांटिंग अ कंपनी, सो अगर आपको बड़ी कंपनी खरीद करनी है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज़ इन करोड्स ऑफ रुपीज़. वेर इज़ ये स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज़, 1 करोड़ के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, 50 lakhs 25 lakhs के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल. सो विद अ कम लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल यू कैन क्रिएट मोर अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज देयर इज़ अ डेवलपमेंट फॉर योर सेक्टर ऑल्सो. Again, with the establishment of and development of this employment oriented industries, अगर ये हमने कर दी कि स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री हमने बना ली और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन चालू कर दिया, सो दिस विल इंक्रीज एज वेल एज हमारा इनकम भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, एंड देयर विल बी अ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाएगा. कि ज़्यादातर जो हम ये सिचुएशन में फेस करें, दैट इज़ इन्फ्लेशन, द मनी which is increasing for all the types of goods will can decrease, or it will be, we can say, nominal to us. In construction sector also, employment oriented planning should be more effective and more employment should be created. तो जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग है उसके अंदर भी हमको ज़्यादा फोकस करना, मतलब रियल इस्टेट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, डैम्स, ब्रिज, पब्लिक टेंडर्स के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स एंगेज करें. अगेन these are the few points. And lastly, state also can coordinate with between capital intensive and labor intensive production techniques, and more emphasis should be given on labor. तो गवर्नमेंट स्टेट को ऐसा करना चाहिए, हर एक स्टेट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे कि लेबर इंटेंसिव वाले कंपनी उसके स्टेट में हो. So when there is more labor intensive companies which are there in their state, what will happen? You find that more laborers will get engaged because we have the largest labor supply after China. तो वो वहाँ पे काम होएगा, and you find that employment can be created. So there should be a balance between capital intensive goods and capital intensive production technique and labor intensive production technique which will be there. So this is how we find that it can unemployment can be solved and employment oriented planning should be done. I hope you have been clear with this. Next class we are going to study about the remaining 4 topics which have been there. For that, you just keep writing the notes. If you have any doubt, you can just call or message me. Thank you.